worry about it. All right. Hi, welcome to Grow More with English. We are waiting for our student. His name is Mr. Ashik. Let him join and then we will start. Okay, so most of the people who don't know me, let me tell them that my name is Asjad and I work for Grow More with English. Let me change the background. I mean, like, this is something which is not looking good at all. So I think I need to change the background. How do I change it? I really don't know. Okay. Oh, hi, Ashik. Hello, Ashik bhai, can you please unmute yourself? Yes, Ashik, can you please unmute yourself? Yeah. Yes, hi. Am I Assalamu audible alaikum. to you? Wa alaikum Yeah. assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Can you please open your camera if you don't mind? Yes, can you please open your camera, Ashik? This. Oh, yes. Okay. Hi. This is the first time I'm seeing you. I think this is the very first time. Today I'm seeing you. Okay. How are you? How are you? Yes. Are you I am good? fine and you, sir. Oh, yeah, I'm also good. Thanks for Yes. asking. All right. So let's just start without wasting any Ji. time. So, can you please tell me something about yourself first? Yes. My name is Muhammad Asif. I am from Bihar and I am 25 years old. I have completed my graduation from RS College. And Mhm, currently I am working in Saudi Arabia as a cashier mhm, and I am mhm, working here last 1 year. There are 5 members in my mhm, family. I like mhm, listening. I like playing cricket and listening to music in my free time. mhm, I want to become a manager in the future. mhm. All right, that's great. So you want to become you want to become a manager in your future. All right. Okay, so Mr. Ashik, can you please tell me that like you joined me couple of weeks ago, I think 2 3 weeks ago you joined me. So can you please give me like some feedback? How was your classes? आपने कुछ सीखा? क्या-क्या समझा? क्या चीजें आपको समझ में आई? And how was my classes? Actually पता है क्या है? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ because most of the people don't believe, they do not trust, और उन्हें लगता है कि कहीं पैसे लेके चले ना जाए, right? So this happens a lot with a lot of students of mine. So they ask me and they have like a lot of doubts. So just please let me know कि basically आपका experience हमारे साथ कैसा रहा है अभी तक का. Yes, please. अभी तक मैं Tell me. बहुत कुछ सीखा है। जब 15 दिन 20 दिन क्लास का हुआ है जिसमें टेंस के बारे में बहुत कुछ सीख गया। जो मुझे टेंस पहले तो अच्छा. थोड़ा बहुत ही मालूम था, लेकिन अभी बहुत कुछ क्लियर हम्म. हो गया है। इसमें जो कन्फ्यूजन मुझे अच्छा. था जैसे प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर में एंड पास्ट टेंस में, हम्म. वो कन्फ्यूजन मुझे दूर अभी हो हम्म. गया। एंड जो मॉडल वर्ब ठीक के है. बारे में था, मॉडल वर्ब के बारे में हम्म. मुझे 2-3 ही मालूम था, जैसे हम्म. कैन, कुड हम्म. एंड शुड के बारे में, लेकिन अभी बहुत कुछ मालूम हुआ। मैं माइट, शुड हैव, कुड हैव, Yes. बहुत कुछ। हम्म. जी। Okay. एंड उसके बारे में फिर जो आप बुक दिए थे, वो बुक से भी हाँ. बहुत कुछ पता चला। डेली इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस। की आप बात कर रहे हैं. जी। हाँ. तो बुक में काफी अच्छी बुक है बुक भी वैसे वो. मैं पढ़ता हूँ जब। अच्छा, जी, माशाल्लाह, जब टाइम में दैट्स मुझे ग्रेट. मिलता है, टाइम निकाल के मैं बुक का हम्म. 1-2 लेसन डेली पढ़ता हूँ उसमें। उसमें भी हम्म. जो एक सिलेबस है, उस सिलेबस के टाइप पे उसमें भी दिया हुआ है। अच्छा. स्टार्टिंग टू जी, यूज ऑफ हम्म. एजएमआर एंड द यूज, उसमें भी सेम जो पढ़ा रहे हाँ. सिलेबस के अकॉर्डिंग आशिक भाई, उसमें भी। आशिक तो भाई मैं उसमें बहुत ना कुछ आपको एक मुझे चीज. बेनिफिट हुआ है। मैं कुछ हम्म. जी जी. उसमें ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि पहले अगर मुझे आप उस क्लियर बुक नहीं को हो पा कवर रहा कर था, लोगे ना पूरा. बहुत कुछ नहीं समझता था।
जी 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 जी, अगर आप उस बुक को कवर कर लेंगे ना जी एक बारी बोले। पूरा कंप्लीट, अगर आप उसे बुक को कवर कर लेंगे, सो दैट वुड बी लाइक रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट बुक है ना। मैंने जब फर्स्ट टाइम लाइक इन माय लाइफ व्हेन आई रेड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो दैट टाइम आई थॉट ओ माय गॉड दिस इज अमेजिंग, एंड आई रिकमेंडेड दैट बुक टू एवरीवन, लाइक आई हैव taught thousands of students in my life, and I have recommended that book to everyone, and everybody said that sir this is amazing and I think everyone should go through it. तो ये बेसिकली एक चीज है बुक के बारे में। चलिए बहुत अच्छा है। वैसे मेरी मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है, यही कि आप जो भी मतलब बताते हैं वो मतलब समझ में आएगा, मतलब सिंपल वर्क, चलिए मतलब बहुत अच्छी बात है, दैट इज वेरी जो भी गुड। समझा रहे वेरी गुड। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए तो फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो हम लोग अब बात करते हैं लाइक व्हाट डिड वी डिस्कस लास्ट टाइम, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? हैं। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ा था क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन के बारे में, इसमें पढ़ा रहे थे आप आज बोलते पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाने के। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले ना आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे बेसिकली नाउन के बारे में, ठीक है। तो आप मुझे जी। बताएं दैट व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस एंड हम्म जिसे किसी भी स्थान जो वस्तु में देखता हूँ, हम्म। ये ओके ओके ओके। जिसे सो चलिए मैं बताता हूँ, चलिए चलिए मैं बता जो देता हूँ आपसे नाउन विचार। क्या होती है। देखो, नाउन की ना बहुत एक सिंपल सी, आप ये मान लीजिए एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है नाउन की, वो ये है कि दुनिया में जितनी चीजें हैं, चाहे फिर वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे फिर वो चीज हो, और चाहे फिर वो कोई जगह हो, ये चार चीजें हैं दुनिया के अंदर। या तो कोई जगह है सबसे पहले, फिर उसके बाद उस पर इंसान है, उसके अंदर जानवर है, उसके बाहर जानवर है, और उसके अलावा इंसानों और जानवरों द्वारा बनाई गई चीजें हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जितनी भी चीजें हैं इन्हें कोई ना कोई नाम दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, तो लैपटॉप एक क्या है, बेसिकली एक चीज है जिसे नाम दे दिया, जिसे नाम दे दिया गया, बेसिकली किस चीज का नाम दे दिया गया, लैपटॉप का। तो लैपटॉप क्या है, एक नाउन है। इसी तरीके से आपके आसपास टेबल है, तो टेबल भी एक नाउन है। जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो सभी क्या है, वो सभी आपकी नाउन है। बट देर इज वन प्रॉब्लम, एक चीज है जो हमें समझ नहीं आती है, और वो चीज ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोगों को लगता है कि सिर्फ जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, जितनी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, वही बेसिकली नाउन है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो हर एक चीज जिसे हम देख पा रहे हैं और सुन बेसिकली जो है टच कर पा रहे हैं, वो तो नाउन है ही है, लेकिन उसके अलावा एक तरीके की नाउन और होता है। जैसे मान लीजिए लोग समझते हैं कि प्यार जो है वो नाउन नहीं है। जैसे मैंने कहूँ लव, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ बेसिकली आपका मैं आपको बोलूं जो है वो नफरत, ठीक है। मैं कहूँ गुस्सा, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोगों को लगता है कि ये नाउन नहीं है, बल्कि लेकिन ये नाउन है। ये क्या है, ये किसी फीलिंग का नाम है। इट इज अ नेम ऑफ अ फीलिंग, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है ना, बेसिकली तो ये फीलिंग जो है, इसे इसे भी हम लोग नाउन ही बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि लव, ठीक है, तो लव एक नाउन है। इसी तरीके से मैं आपको कहूं हेट, तो हेट एक नाउन है। इसी तरीके से मैं आपको कहूं एंगर, तो एंगर भी एक नाउन है। हैप्पीनेस एक नाउन है। तो आई थिंक इसके बारे में मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी काफी काफी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मैंने प्रोवाइड कर दी हैं आपको, आई थिंक, जो कि मैं देख पा रहा हूँ। जी जी। सो ये तो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, सो इसमें तो हमें आगे बात करने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक टुडे वी नीड टू डिस्कस अनदर थिंग विच इज लाइक प्रपोजिशन, ठीक है। हम लोग प्रोनाउन के बारे में भी वैसे बात कर सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कोई ये सोचने लगे कि नहीं इंपॉर्टेंट है, बट हम लोग अभी फिलहाल जो है ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। सो वी हैव टू फोकस ऑन बेसिकली प्रेपोजिशन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले प्रेपोजिशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रेपोजिशन में आप मुझे बताएं दैट जो मैंने आपको एप्लीकेशन सेंड की थी वो आप लोगों ने आपने डाउनलोड कर ली है? जी डाउनलोड एक किया। एप्लीकेशन, ठीक है, तो आप उसे ओपन कर लीजिए एप्लीकेशन को। ओके जी। एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। एक्चुअली वो उसका मेरे स्क्रीन शेयर नहीं हो सकता है।
जी जी, स्क्रीन नहीं शेयर वो नहीं हो तो मेरे सकता है ना, दूसरे तो मोबाइल में है, अच्छा अच्छा जी जी जी। देखना पड़ेगा। नहीं एक्चुअली मेरे फोन में तो मैं है, ला रहा लेकिन हूँ। वो हाँ, इसकी स्क्रीन पे जो है ना, हम लोग उसे वो नहीं कर सकते हैं, शो नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक प्राइवेट एप्लीकेशन है। चलिए, तो इसमें जो है ना, सबसे पहले आप प्रेपोजिशन पे क्लिक करेंगे तो उसमें प्लेस प्रेपोजिशन आ रहा होगा, तो प्लेस प्रेपोजिशन पे आप क्लिक कीजिए प्लीज। ओके वेट 2 मिनट। मैं से, कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिए, प्लेस प्रेपोजिशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर वो दिख जाएगा। हैव यू चेक्ड? जी, आशिक भाई क्या हुआ? हेलो आशिक। वो हाँ एक्चुअली हाँ, ठीक है। मेरे दूसरी वाली मोबाइल में है, वो जॉब ऐप अच्छा, डाउनलोड किया। नो प्रॉब्लम। हाँ, इसमें एड्स बहुत आते हैं, काफी एड्स इसके अंदर आते हैं, सो यस दैट इज वन थिंग व्हिच इज अ प्रॉब्लम समटाइम्स। सो इट हैज अ लॉट ऑफ एड्स लाइक, ओके, एनीवेज, सो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट, सबसे पहले हम लोगों को इसमें बात करनी है किसके बारे में, प्लेस प्रेपोजिशन के बारे में। प्लेस प्रेपोजिशन ओपन कर जी लीजिए। वन वेट सर वन। हम्म। टाइम लगता है इसमें असल में, और टाइम लगने की सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, एंड दैट इज बिकॉज sometimes what happen that it is taking time because it shows a lot of advertisements. That is the problem, isn't it? बस Yes, have you opened? ये All right, great. चलिए ठीक है, तो फिर आप मुझे बताइए, पहली preposition क्या है? पहली preposition आई थिंक इन होगी, जहां तक मुझे लग रहा है। प्लेस प्रेपोजिशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको आएगा पहला इन, ठीक है। जी जी हम्म। अभी हो सो रहा अभी ऑन नहीं हुआ। अच्छा, अभी अभी भी एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं? जी जी दिख रहा है। चलिए ठीक है। ओके, तो पहली प्रेपोजिशन इसमें कौन सी है, आप मुझे बताएंगे? वुड यू लाइक टू इन रीड इट फॉर मी? इन इन है पहले वाली। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इन की, तो इन बेसिकली कब यूज किया जाता है? इन का यूज किया जाता है, वी यूज इन ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोई चीज किसी चीज के अंदर है। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होगी तो हम लोग बोलेंगे वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि बॉल बॉक्स के अंदर है, सो हम क्या बोलेंगे, द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल जो है वो बॉक्स में है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ तुम मेरे दिल में हो, सो यू आर इन माई हार्ट, राइट? ठीक है, मैं उसके दिल में हूँ, आई एम इन हर हार्ट, राइट? सो समथिंग लाइक दैट। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है? इट इज वेरी सिंपल, बट हम लोगों को गो थ्रू तो करना है ना। चलिए ऑन नेक्स्ट बताइए। जी व्हाट? सेकंड ऑन
ऑन ऑन का on. मतलब होता है किसी चीज पर, जब कोई चीज किसी चीज पर रखी हो, जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप जो है वो टेबल पर रखा है, तो मैं क्या बोलूंगा, द लैपटॉप इज ऑन द टेबल, राइट। इसी तरीके से कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर रखी है तो हम लोग उसके लिए जो है ना ऑन का यूज करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज द नेक्स्ट। Under. अंडर, अंडर Under. भी बेसिकली, अंडर जो है ना, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है उसके लिए हम लोग अंडर का यूज करते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ, बॉल इज अंडर द बॉक्स, बॉल जो है वो बॉक्स के बेसिकली नीचे है। चलिए नेक्स्ट, Okay. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल फॉर यू। Next to. नेक्स्ट है टू। Next to. ओके, व्हिच वन, कैन यू शो मी। कैन यू शो मी नेक्स्ट वन क्या है। Next to. Next to. देखो. नहीं, आपकी आवाज कट रही है। ओके नेक्स्ट Next. टू, ऑल राइट ऑल One राइट, minute. नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू। ओके ओके, नेक्स्ट टू है, ठीक है। नेक्स्ट टू की अगर मैं बात करूं, लेट मी टेल यू। 2 minutes. नेक्स्ट टू जो होता, जी जी, नेक्स्ट टू जो होता है वो होता है बेसिकली जब कोई मेरे से आगे बैठा हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी तो हम लोग तुम और मैं फेस टू फेस हैं, तो यानी आपकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है, मेरी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। तो हम लोग इसे जो है ना वो नियर नेक्स्ट टू नहीं बोलेंगे, लेकिन नेक्स्ट टू हम लोग तब बोलेंगे जब हमारी दोनों की डायरेक्शन सेम हो। मान लीजिए आप भी ईस्ट में ही देख रहे हो और मैं आपके जस्ट पीछे खड़ा हूं, मैं भी ईस्ट में ही देख रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, दैट माई ब्रदर इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। ठीक है, मेरा भाई जो है ना वो बेसिकली मेरे से आगे खड़ा है। तो यानी जब दो चीजों की एक ही तरफ डायरेक्शन हो, एक दूसरे और वो एक दूसरे के पीछे हो, तो वहां पर हम लोग नेक्स्ट टू का यूज करते हैं, दैट वो मेरे से आगे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, बॉल जो है वो बॉक्स से आगे है। जी, नेक्स्ट। Next between. विच, Between. बिटवीन, ओके बिटवीन। बिटवीन जो है ना हम लोग किसी जब Between. जब हाँ ठीक है, जब कोई चीज दो चीजों के बीच में होती है, जब कोई चीज दो चीजों के बीच में होती है वहां पर हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि बॉल जो है वो बॉक्सेस के बीच में है, सो हम बोलेंगे द बॉल बिटवीन द बॉक्सेस, यानी दो बॉक्स है उनके बीच में बॉल है। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूं मैं दो लोगों के बीच में बैठा हूं, तो आई एम सिटिंग बिटवीन टू पीपल। मैं ये नहीं बोलूंगा बेसिकली ज्यादा लोगों के लिए मैं बिटवीन यूज नहीं करूंगा। मान लीजिए अगर तीन लोग हैं तो फिर मैं बिटवीन यूज नहीं कर सकता हूं, उसके लिए नेक्स्ट वर्ड आएगा वो मैं तभी एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि बिटवीन का यूज सिर्फ दो चीजों के बीच के लिए ही होगा। जब मान लीजिए आप दो चीजों के बीच में हो या फिर कोई चीज दो चीजों के बीच में है, वहां पर हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। डिड यू गेट इट कंप्लीटली। ओके दैट्स ग्रेट, नेक्स्ट बताइए। Next. Among. अमंग, ठीक है, अमंग। अब अमंग जो है ना वो बेसिकली क्या है, अमंग हम लोग यूज करते हैं ज्यादा चीजों के बीच के लिए। यानी जब कोई चीज बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में, आप देख भी पा रहे होंगे उसमें कि वो क्या है, वहां पर बॉल जो है ना वो कम से कम 8-10 बॉक्स के बीच में है। तो ये बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है, ठीक है। तो अब जो है आप इसे बोल सकते हो द बॉल अमंग द बॉक्सेस, या फिर मैं बोल सकता हूँ आई एम सिटिंग अमंग द पीपल। मैं जो है बेसिकली लोगों के, या सॉरी मैंने द गलत यूज किया, आई एम सिटिंग अमंग पीपल, मैं जो है ना लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि दा हम लोग एक चीज के साथ ही यूज करते हैं, एक से ज्यादा के साथ यूज नहीं करते। मैंने पीपल के साथ यूज कर दिया, पीपल इज अ प्लूरल, राइट। तो ऑब्वियसली वी कांट यूज पीपल, वी कांट यूज दा बिफोर पीपल। ओके नेक्स्ट बताइए आप मुझे, व्हाट इज नेक्स्ट। तो अमंग और बिटवीन Next का in क्लियर हो गया front आपका। of. आशिक भाई, अमंग अमंग और बिटवीन का क्लियर हो जी गया आपका। ओके दैट्स ग्रेट, चलिए माशाल्लाह, नेक्स्ट बताइए आप मुझे। जी जी. Between. Between दो लोगों के बीच में एंड अमंग दो से हाँ अधिक लोगों के बीच. बिल्कुल, बिटवीन दो लोगों के बीच में, और अमंग जो है वो नेक्स्ट एक से इन ज्यादा के फ्रंट बीच ऑफ. में। ओके नेक्स्ट है आपका फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट फ्रंट ऑफ. ऑफ क्या है। ओके इन फ्रंट ऑफ। अब ये जो इन फ्रंट ऑफ है, इन फ्रंट सामने ऑफ का में. मैं बताता हूँ, जी जी जी, इन फ्रंट ऑफ का मैं बताता हूँ। इन फ्रंट ऑफ क्या होता है। इन फ्रंट ऑफ होता है बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया ना नेक्स्ट टू, तो अब तब तो हमारी दोनों की डायरेक्शन जो है क्या थी, वो एक तरफ थी, जैसे ईस्ट में थी हमारी दोनों की डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम नेक्स्ट इसमें ये कर सकते हैं दैट जब आपकी आपकी डायरेक्शन मेरी तरफ हो और मेरी डायरेक्शन आपकी तरफ हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी डायरेक्शन तो आपकी तरफ है और आपकी डायरेक्शन मेरी तरफ है, यानी हम दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठेंगे। तब जो है ना हमारा क्या होगा, जब हम लोग बोलेंगे कि इन फ्रंट ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि तुमने मेरी तरफ चेहरा कर रखा है और मैंने तुम्हारी तरफ चेहरा कर रखा है, सो दैट इज कॉल्ड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। डिड यू गेट इट। फेस टू भाई इन फेस. फ्रंट ऑफ, दैट मीन्स फेस टू फेस, फेस टू फेस आप बोल सकते हो। फेस टू फेस. हाँ बिल्कुल। ओके नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट बिहाइंड.
नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड यानी पीछे, जब कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है तो वहां पर हम लोग बेसिकली बिहाइंड का यूज कर लेंगे। लेकिन इसमें भी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, जैसे ईस्ट डायरेक्शन या फिर वेस्ट डायरेक्शन है, कोई सी भी डायरेक्शन है, तो इसमें दोनों की जो बेसिकली डायरेक्शन है वो दोनों की सेम होगी। यानी हम जो है ना एक ही तरफ मुंह करके बैठे हैं, मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूँ, तुम आगे बैठे हो, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली, आपने क्या बोला, बिहाइंड। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि माई ब्रदर इज सिटिंग बिहाइंड मी, मेरा भाई मेरे पीछे बैठा है, लेकिन हम दोनों की डायरेक्शन एक है। ठीक है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ में डायरेक्शन एक नहीं होगी, उसमें दोनों की अलग अलग डायरेक्शन। डायरेक्शन होगी। अगर तुम्हारी ईस्ट है तो मेरी वेस्ट होगी। ठीक है, मेरी वेस्ट है तो तुम्हारी ईस्ट होगी, इस तरीके से होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज द नेक्स्ट? above, above, कौन सा? above, above, ओवर। कैन यू प्लीज शो मी? मुझे above. समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, कैन यू प्लीज शो मी? आप दिखा कैमरा सकते हैं? चेक। प्लीज आप जी। दिखाइए। above. नेक्स्ट है आपका अबव। अच्छा, अबव। अबव का हम लोग यूज करते हैं, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अबव का हम लोग यूज करते हैं आशिक भाई, जब जब हम किसी चीज, कोई चीज किसी चीज के थोड़ा ऊपर होती है, यानी टिकी भी ना हो। जब कोई चीज किसी चीज के थोड़ा ऊपर होती है तो वहां पर हम लोग अबव का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं इस वाले एग्जांपल में, द बॉल इज अबव द बॉक्स। द बॉल इज अबव द बॉक्स। बॉल जो है वो बॉक्स के above. जस्ट ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। And next below, नेक्स्ट कौन सा है? बिलो। below, बिलो। हाँ, तो below बिलो down. भी कुछ इसी तरीके का होता है। हाँ, बिलो भी कुछ इसी तरीके का होता है, जैसे अबव है वैसे ही बिलो है। बिलो जो है ना, जो काफी नीचे हो लेकिन किसी चीज पे टिका हुआ ना हो, तो वहां पर हम लोग बिलो का यूज करते हैं। नेक्स्ट बताइए। Next near, नेक्स्ट व्हाट? नियर। near. हाँ, तो नियर होता है बेसिकली पास में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बोल सकता हूँ दैट लाइक somebody is sitting near by me, कोई मेरे पास बैठा हुआ है, तो बेसिकली जब कोई पास में हो तो उसके लिए हम लोग नियर बाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट। Next far from, ओके, फार फ्रॉम। फार फ्रॉम का यूज होता है जब कोई चीज हमसे बहुत ज्यादा दूर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, दिल्ली इज फार फ्रॉम मी, यानी दिल्ली इज फार फार फ्रॉम मी, दिल्ली जो है मेरे से काफी दूर है। यानी मान लीजिए मेरे और दिल्ली के बीच में 150 किलोमीटर का जो है ना वो डिस्टेंस है, तो मैं बोल सकता हूँ दिल्ली इज फार फ्रॉम मी, दिल्ली मेरे से काफी दूर है। राइट, इसी तरीके से आप बोल सकते हो दैट इंडिया इज फार फ्रॉम मी राइट नाउ, एज यू आर सिटिंग इन गल्फ। ओके, नेक्स्ट। next at, नेक्स्ट है आपका एट। एट जो है ना हम लोग किसी चीज के लिए यूज करते हैं जब कोई चीज हम लोग किसी चीज पर छोड़ आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, आई लेफ्ट द बॉल एट द डोर, मैंने जो है ना बॉल को बेसिकली डोर पर छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ आई लेफ्ट माई स्लीपर एट द डोर, मैंने जो है ना अपने जो चप्पल है वो बेसिकली डोर पर छोड़ दिए। तो जब हम कोई चीज किसी चीज पे छोड़ते हैं या फिर किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखते हैं, ऊपर नहीं मतलब किसी कहीं कहीं किसी जगह पर हम कोई चीज रख देते हैं, तो वहां पर हम लोग एट का यूज करते हैं। ठीक है, एट का यूज और भी जगहों पे किया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली prepositions। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या I कर can't सकते हो, do, व्हाट कैन यू डू? जी जी। एट का यूज टाइम I के लिए can't भी do होता है। instance. हाँ, ऐड का यूज टाइम के लिए भी होता है, ऐड का यूज कई सारी चीजों के लिए होता है। आई विल डिस्कस विद यू अबाउट दीज ऑल थिंग्स, बट आई थिंक इन माय ओपिनियन दीज आर द थिंग्स व्हिच आर लाइक व्हिच वर नेसेसरी, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। चलिए, नॉट नॉट अ प्रॉब्लम। सो अब इसमें जो है ना आपको क्या करना है, यू विल हैव टू जस्ट गो थ्रू देम। ठीक है, एंड आई एम रियली सॉरी, आज मेरी एक डेमो क्लास है अभी। ठीक है, तो मैंने सोचा, वैसे तो मैं पहले वो 1:30 पे ही थी क्लास, तो आई थॉट के जो है मुझे आपको एक क्लास जो है ना पूरा 1 आवर करानी है। तो अगर आप अलाउ करो मुझे, और अगर आप फ्री हो, आर यू फ्री टुडे? राइट, तो अगर आप Yeah, फ्री I हो am ना free तो, today. हाँ ठीक है, तो आज शाम में ना मैं एक ग्रुप क्लास करूंगा, तो मैं उसमें आपको बुला लूंगा। ठीक है, टुडे आई विल जस्ट Oh, टेक्स्ट यू, इफ यू विल बी फ्री, यू विल हैव टू जॉइन दैट क्लास, एंड इन दैट क्लास वी विल जस्ट डू द एक्टिविटी। और प्लीज कोशिश करिएगा timing? मंडे में आप, हाँ, टाइमिंग मैं आपको कंफर्म करूंगा मैसेज करके, अभी टाइमिंग कंफर्म नहीं है। Oh, अच्छा, मंडे में जो है ना आपको उस क्लास में आना है, क्या बोलते हैं, रात वाली जो क्लास है ना हमारी, 9:45, राइट? नहीं, 9:45 नहीं, 10:30। 10:30 पे आपको ज्वाइन जी, करना है। 10:30 पे आपको प्रैक्टिस करके आना है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन 4 टेंसेस की एक्टिविटी होगी। और आपको हारना नहीं है, जैसे आप उस दिन बाहर निकल गए थे वैसे बाहर नहीं निकलना है। ठीक okay. है?
वैसे काफी अच्छी एक्टिविटी है वो, और उससे जो है ना बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन जग जाता है, पीपल गेट मोटिवेटेड एंड दे फील दैट ओके आई हैव टू बीट दिस पर्सन, आई हैव टू बिकम द नंबर वन पर्सन इन दिस इन दिस क्लास, एंड आई हैव टू बिकम द नंबर वन स्टूडेंट. बट unfortunately there are a lot of people, they can't become the number one. But I would say one thing, that you'll have to try your best. आपको अपना बेस्ट ट्राई करना है, एंड ट्राई टू जस्ट विन दैट एक्टिविटी. ठीक है, क्योंकि आप कर सकते हो, मुझे पता है, क्योंकि आपका पहले से ऑलरेडी क्लियर है काफी चीजें. और अगर आप उसमें थोड़ा एक्टिविटी करोगे, उससे एक फायदा है जो मुझे लगता है, और वो एक फायदा ये है दैट आप उससे क्या कर सकते हो ना, कि बेसिकली जब आप उस एक्टिविटी को करते हो तो आप जल्दी चीजों को बोलना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि वहां पे भी टाइमिंग मैंने 30 सेकेंड्स रखी है. आगे मैं वो 20 कर दूंगा, और फिर मैं आगे चल के उसमें जो है ना सिर्फ 10 सेकेंड करूंगा. 10 सेकेंड के अंदर आपको बताना भी होगा, पूछना भी होगा. तो क्या होगा, आपको जल्दी करके बताना पड़ेगा, तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा जल्दी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी. तो जब आपके ब्रेन जल्दी प्रोसेसिंग करेगा, सो देन दैट्स हाउ यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश. ओके, so that is the thing. चलिए, thank you very much for today. I will see you on Monday. ठीक है, और on Tuesday I think. ठीक है, और Monday में हम रात में क्लास में मिलेंगे. Till then आप अपना ख्याल रखिए. I will see you. Have a good day. ठीक है आशिक भाई, कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं. Okay, thank you very much. Have a good day, my brother.